good evening. Thank you very much for joining us here on Times Now. This is News Hour special edition this Saturday evening, and I'm Hina Gambhir. Viewers, in the holy Ramcharitmanas, there is a couplet. Jaki rahi bhavna jaisi, Prabhu Murat dekhi tin taisi. Its simple translation is, as is one's faith and devotion in Lord Ram, so is the form in which one perceives the Lord. For crores of believers, the Lord is Maryada Purushottam, the supreme man of honor and dignity. For the BJP and its ideological mentor, the RSS, Ram became the unifier for its cultural nationalism agenda. But some saw Lord Ram and his grand temple as an opportunity for sordid embezzlement. You know, the 2019 Supreme Court order and the consecration ceremony in 2024 were supposed to bring a closure to the centuries-old dispute and strife over a home for Ram Lalla. But the temple is residing in news headlines for all the wrong reasons these days. The Ram Temple Chanda Chori case is getting murkier by the day. Let's take a quick look at what's happening. Now, first, there are questions about the magnitude of Chanda Chori. The probe and our investigation has suggested that Chori is estimated at around 8 to 10 lakh rupees per day from temple donations. Then, looting the Lord was bringing dividends, it seems, for the perpetrators who are in custody. Because cops now are examining whether vehicles allegedly purchased by the accused were financed using siphoned off money. Investigators have recovered a Brezza car allegedly linked to accused Avinash Shukla. Then there is a curious case of white Desire car purchased by Anukalp Mishra in 2025. You know, he recently booked a Scorpio but got arrested before taking the delivery of that vehicle. So all of this is now under investigation. Next, while the SIT probing the theft has time till 15th of July to finalize a report, a Times Now investigation has revealed sordid details. Times Now special investigation team has exposed that the mastermind of this loot could actually be Ram Mandir's administration assistant. Yes, our team spoke to the close aide of Mahant Dinendra Das, the head of Nirmohi Akhada. He told us that the man orchestrating the loot was actually Gopal Rao, and that he was the one who even tutored others on how to steal. Sources claim that this alleged mastermind, Gopal Rao, has left Ayodhya. He has either left for Delhi or for Karnataka. The trust is scheduled to meet on 6th of July. And for the first time, the trust will meet since the Chanda Chori hit the headlines. The trust is expected to consider resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. But there are questions ahead of the meeting. Who is going to chair this meeting? Because Trust Chairman Mahant Nritya Gopal Das may not lead the meet as he is undergoing treatment in a hospital in Lucknow. Trust members are expected to vote on the resignations. Now, as per trust bylaws, a 2/3 majority is required to accept the resignation of any office bearer. Even if the resignations are accepted, both Rai and Mishra could be removed only from their posts while continuing as lifetime members of the trust. Will that be an acceptable face saver? That's one question. Now, amid the allegations and action, UP government is facing fire. Opposition wants the trust to be dissolved. It claims attempts are afoot by the BJP government to save the real culprits. Congress MP Manish Tiwari has called for a Supreme Court monitored probe. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav took a jibe with a cryptic post saying, "Kya phir chale gaye Ram Vanvas?" He released an AI-generated video depicting Lord Ram leaving Ayodhya. Now, Shiv Sena faction led by Uddhav Thackeray has announced a Ram Raksha Andolan, a village-to-village movement claiming it needs to protect Lord Ram from the BJP and its looters. Listen in. लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था से उन्होंने दान दक्षिणा दी है राम मंदिर के निर्माण में, तो उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन वैसे ही छेड़ा जाएगा क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज
सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। हर गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलला का जो आंदोलन है वो रामलला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे। आज आप सोचिए, राम मंदिर जैसा एक भव्य मंदिर बनाने का श्रेय ये लोग लेते हैं, और वही 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत उसमें इस तरीके की गंभीर चोरी के मामला आया है, जहां पे भगवान के जेवरात भी चोरी हो गए हैं। इससे बड़ा महापाप मैं नहीं मानती हूँ कुछ और हो सकता। অন্য কাউকে এই তো রাম মন্দির কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যাन, और आज के राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया। The Bharatiya Janata Party meanwhile says that guilty won't be spared. Let the investigation continue and the opposition should not politicize this matter. जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रभावी ढंग से होगी। राहुल गांधी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, और चाहे जो भी श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में अपने जुबान बंद कर रखें तो अच्छा रहेगा। इस पे बहुत ज्यादा किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज कि मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वो लोग जो लोग कि अभी तक भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, ये जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन हो या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दूध का दूध है, पानी का पानी होगा। विषय गंभीर है। कल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहां की सरकार तत्पर है। And viewers, we have some breaking inputs coming in right now. Shankaracharya Swami Sadanand Saraswati has reacted amid this controversy. He has said that a Sanatan Dharm Protection Committee or Sanatan Board must be established. Listen in. हम लोगों का पहले से यह अभिप्राय था, कहना था कि सनातन धर्म संरक्षण समिति अर्थात सनातन बोर्ड जिसका निर्माण हो, जिसके अधीन सारी धार्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। So you heard the first reaction there coming in, and tonight, viewers, we will discuss why the best practices followed in iconic temples in handling donations were not deployed at the Ram temple. We will try to establish, will the Chanda Chori case help the opposition to weaponize the issue before the 2027 UP Assembly polls? BJP, by the way, has already started the preparations with its president, Nitin Nabin, in UP. Now, at a time when custodians of faith face allegations of integrity deficit, should there be a Supreme Court-led probe into this matter? Because, viewers, this is not a case of ordinary theft, but of siphoning of faith. Thus, with the panel of wise experts that we are being joined by today, we will try to find what can really bring the faith back. And joining us on the broadcast are my guests. We have Dr. Ajay Alok, National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Vinod Bansal, National Spokesperson of the VHP, Tushar Gupta, Political Analyst, Ashok Yadav, Spokesperson of the BJP, Kishore Tiwari, Political Analyst. Also joining us is Advocate Kapil Madan, Political Analyst. Good evening to all of you gentlemen. Appreciate you joining us here on this debate. Vinod Bansal, to you first. We got the first reaction today from Shankaracharya Swami Sadanand Saraswati that perhaps there is a need to have a Sanatan Dharm Protection Committee or Sanatan Board, he says, must be established. I mean, I also want to take you to how the donations are managed in other temples across India. We've never seen something like this happening with other temples. I mean, what is your opinion? What has gone wrong in your opinion? And also, do you think Sanatan Board perhaps is the only solution? नो, देखिए, मैं पूज्य संतों का और पूज्य शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए आदरपूर्वक कहना चाहूँगा कि देखिए, जो उनके सुझाव हैं उस पर समाज विचार कर रहा है और निसंदेह ये जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जितनी निकृष्टतम शब्दों में निंदा करनी चाहिए, जितना तीव्रता के साथ निंदा करनी चाहिए, वो भी सिंधु परिषद ने की है। डे वन से जो है वो हमने इसका निष्पक्ष जांच की मांग की है
डे वन से हमने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो। तीसरी बात हमने ये भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, कठोरतम सजा होनी चाहिए उनको। और आप देखिए कि किसी ने बचाव की बात नहीं करी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक बात का जरूर संतोष है इस घटना के माध्यम से। जो राम को नहीं जानते थे, जो राम को नहीं मानते थे, जो रामद्रोही थे, जो राम पर गोली चलाते थे राम भक्तों पर, और जो लोग रामचरितमानस को जलवाते थे, गोस्वामी तुलसीदास पर कीचड़ उछालते थे, वो सारे के सारे आज राम भक्त हो गए हैं। आप देखिए, और तो और वो कांग्रेस जिनके प्रथम प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके कहा था ये कौन रामलला, हटाओ इसको यहां से और मस्जिद बनाएंगे हम इसको, बाबरी बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा था डीएम अयोध्या को। और आप देखिए उन्होंने, वो तो डीएम अयोध्या का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसको ऑर्डर को ओबे नहीं किया। आप सोचिए, नहीं तो ये तो राम जी को तो सिर्फ नकारते ही नहीं थे, इन्होंने अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में 25 वकीलों की फौज लगाई थी। कौन नहीं जानता भाई ये। और सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा था कि 2019 के इलेक्शन है जी, क्या होगा, आप सुनवाई मत करिए। और जिन्होंने सुनवाई की तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ, मतलब उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट मोशन लगा दिया। आप सोचिए, वो सारे के सारे लोग जिनको नानी मना करती है मंदिर जाने के लिए, नानी कहती है जहां बाबरी मस्जिद है वहां मत जाना बेटा, तो वो लोग भी आज जो मस्जिद से, जो अपना जेल से बेल पर रिहा हुए हैं और जेल से जो शासन चलाते थे, वो भी आज नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। खैर एनीवे, लेकिन यह बात जरूर है कि हमारा संकल्प है कि किसी भी तरह से कोई अपराधी बचना नहीं पाएगा, कोई भी अपराधी को कठोर दंड दिला के रहेंगे हर एक को, और पैसों की रिकवरी भी करेंगे, और साथ ही साथ एक दृष्टांत भी सेट करेंगे। जहां तक आपने कहा कि और मंदिरों की बात, तो देखिए ये लूट कोई पहली बार नहीं हुई, ये भी बता दूं आपको मैं इसका कोई ये नहीं कह रहा कि कोई इसके कोई सपोर्ट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन हमने देखा कि भाई वैष्णो देवी में इसी कांग्रेस के एक मंत्री थे, वो वहां पर जाकर के उन्होंने कितनी लूट मचाई थी, कौन नहीं जानता। मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी इस समय। आप बताइए कि ये जो अपना जो दक्षिण के मंदिर हैं, आखिरकार टीटीडी में क्या हुआ था, वहां तो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को उसका चेयरमैन बना देते थे। और आप देखिए कि यहाँ पर जो अभी शनि सिंगनापुर में क्या हुआ, वो अपनी सबरीमाला में तो 4 किलो गोल्ड ये कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने मिला के चोर लिया, और आप आज चोरों की दुहाई दे रहे हैं। आप बताओ चोरी की। मैं कहता हूं देखिए ये कुछ नहीं है, राम मंदिर को और राम भक्तों की श्रद्धा और आस्था के साथ में गंभीर खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार अब इसके आड़ में क्या कह रहे हैं पता है आपको? ये कह रहे हैं कि भाई अब मंदिरों में गोलक नहीं होना चाहिए, अब मंदिरों में सरकारी अधिग्रहण होना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए मंदिरों को। मंदिर में जो है ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हम उन पर भी बात करेंगे। किशोर तिवारी आई थिंक वांट्स टू कम इन एज वेल, ही वाज रेजिंग हिज हैंड। Kishore Tiwari ji, the charge is the opposition that even denied the existence of Lord Ram at one point in time is sensing an opportunity here today because of UP elections, UP Assembly elections that are supposed to happen in 2027, and that's the reason why they are trying to play politics around it. हिना जी, ये देखो, ये अजय आलोक और विनोद बंसल को कोई नैतिकता नहीं है। देखिए, जिन्होंने राम का अस्तित्व नकारा था उनको सजा मिली ना, सत्ता से बाहर है। हाँ, जो लोग राम मंदिर में नहीं गए उनका, लेकिन मैं तो बाबरी मस्जिद तोड़कर जेल में गया हुआ आदमी है, मुझे लोकस स्टैंडी है। मैं अयोध्या से आता हूं तो मुझे सब मालूम है। हाँ, मेरे सब रिश्तेदार बता रहे हैं कि योगी जी हफ्ते में एक बार आते थे, और ये इनोसेंट विक्टिमाइजेशन हो रहा है चंपत राय जी का, गोपाल राव जी का। मैं अभी बता रहा हूं, पैसा पूरा बीजेपी वालों ने चोरा है, और उसी पैसे से ये सांसद और एमएलसी खरीदते हैं। और अजय आलोक को तो आना नहीं चाहिए क्योंकि वो नैतिकता खो चुके हैं। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, जो लोग अयोध्या नहीं गए, जो लोग अयोध्या पे बहिष्कार कर रहे थे, वो लोगों को लोगों ने सबक सिखाया है। लेकिन जो कुछ हुआ है, उसके लिए बीजेपी को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। अब विनोद बंसल जी कह रहे थे कांग्रेस वाले चोरते थे, कम्युनिस्ट चोरते थे करके हम भाजपा वाले चोर रहे। अरे धिक्कार है, ये बीजेपी के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद में घुसे हुए। ये सरकार का पक्ष रख रहे हैं। निंदा की है, निंदा की है। कौन बीजेपी? निंदा की है। अरे भैया,
सीएम को हटाओ। अरे सीएम को अरे तिवारी जी बताओ तो सही, कौन है? होम मिनिस्टर को हटाओ। बीजेपी का विश्व हिंदू परिषद में कौन है? अरे कम से अरे कम आप भैया, जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप एक मैं बात व्यक्ति करूं हैं और समझदार व्यक्ति चलिए हैं। चलिए, राम both of भक्त you भी now, मानते हैं one अपने at a आप को। time. Gentlemen, one second, one at a time. No tutu meme here. Let's keep it a very civil debate. It's a very, very important issue. It is about faith, astha of the devotees of Lord Ram, not just in India but across the world. And what has happened, it has caused a lot of hurt to the devotees of Lord Ram. Dr. Ajay Alok, please respond. Now, that's the charge of the opposition, and also you saw how Samajwadi Party reacted today, how the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction has launched a Ram Bachao Andolan. How will you like to respond to these issues? And also another point that many are asking is that if the government in Uttar Pradesh is so confident that all the culprits will be punished, then why no FIR against the key people who were supposed to manage and oversee the donation exercise? For Kishore Tiwari's clarity, let me speak 3-4 lines in Hindi, then I'll continue in English. किशोर जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ जो नाम है किशोर तिवारी, तो किशोरों की तरह बोलने लगते हैं. So I don't mind. By the way, today Shiv Sena said that they will take out Ram Raksha Dal. हिंदू इतने कमजोर नहीं है किशोर जी, तो किसी हिंदू की औकात नहीं है कि प्रभु राम की रक्षा कर ले. प्रभु राम सबकी रक्षा करते हैं. और उद्धव ठाकरे का माथा खराब हो गया है कि राम रक्षा करने के लिए निकलेंगे वो, एंड यू आर सपोर्टिंग हिम. बाबरी मस्जिद तोड़ा था आपने. It should be allowed to reply. What happened to Palghar Puja? Okay. Pujari. Kishore Tiwari ji, I will allow you to respond. What happened to Let him Palghar finish his Pujaris? This is your Ram Bhakti. This is your Ram Bhakti. The fact of the matter is that now I understand why it took 500 years to get this Ram temple going and built up. That is because of thieves which are present within us. Ram Drohi जिनको मैं कहता हूं. The one who are arrested. Right from the beginning, for the last 10 days, I've been saying there's only 2 counts. One who has done the theft, those who are in jail. And secondly, there's a criminal neglect of responsibility for the trustees who were overseeing all the operations. They are thief or they are not thief. It's a matter of investigation. SIT and police both are doing the investigation. And let me tell you, whole India believes in Yogi Adityanath and Prime Minister Modi. And when Yogi Adityanath, the Chief Minister of UP, has said, मंच से उन्होंने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो people trust. You guys don't trust, right? And we don't care for you. Now look at this Samajwadi Party. Namazwadi, what I actually say. I'll show you a picture. It's not my statement. It's their leader's statement. And that too in the newspaper which was carried out in the headlines. That clearly says, मंदिर नहीं बनने दूंगा. कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर. Akhilesh Yadav. And Mulayam says, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदू पर गोली चलाना जरूरी था. This is the true color. And why go back 10-15 years back? Recent? प्राण प्रतिष्ठान किशोर जी याद है ना? The day Pran Pratishthan was going on, whole opposition, including the Samajwadi Party and Congress, they were wearing this black, what I'm wearing right now. This is on Pran Pratishthan. जिस दिन राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, काले कपड़े पहन के आए थे. आज राम भक्त बन गए. कार सेवकों पे गोली चलाने वाले राम भक्त. कभी राम लल्ला का दर्शन नहीं करने गए. मुख्तार अंसारी की जनाजे पे फातिया पढ़ने चले गए. आज राम भक्त बन रहे हैं. Okay. These people are bunch of nautankies and thugs. They say कि राम भक्तों की आस्था टूटी है. कोई आस्था नहीं टूटी है. A faith can never be shattered. नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कोई आस्था नहीं टूटी है? किसी को पता ही नहीं है पहली बात तो कितना चंदा चोरी हुआ है. कोई आस्था नहीं टूटी, आस्था बढ़ी है. आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी की आस्था नहीं टूटी है? क्योंकि जो हुआ है, जो SIT ने डिटेल्स दी है, SIT ने जो फिल्म रिपोर्ट सबमिट करी है, उसमें क्लियरली लिखा है कि ट्रस्ट को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए. Hina, I'm telling you, that is the administrative process which will be taken care. That is not my concern. Here the broad agenda is what? The broad agenda इनका क्या है? बड़ा एजेंडा इनका ये है, हिंदू धर्म को बदनाम करो. Okay. राम को बिलिटल करो. प्रभु श्री राम में आस्था कम हो गई. कौन डोनेशन देगा? कौन अब मंदिर में दर्शन करने जाएगा? The fact is, after 6th June, the devotees numbers have increased. The donations have increased. Okay. But their broad
spectrum agenda is belittle the Hinduism, Okay. belittle the Hindu dharma. Ashok Yadav Prabhu Shri Ram and Das come Advocate karo. Kapil Madan, This is the please broad respond. agenda. Ashok Yadav first, then Advocate Kapil Madan. देखिए हिना जी, बंसल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फला फला मामले में वकील खड़ा की थी, लेकिन आज भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे कि वकालत करने के लिए अजय आलोक जैसे लोग, बंसल जैसे लोग यहाँ पर टीवी पे हैं। ये सिर्फ 2 नाम मैंने गिनाया है, दर्जनों ऐसे प्रवक्ता हैं चोरों की जो वकालत इस कोई चंदा नहीं कर चोरों रहा है। के बचाव में दिन रात लेकिन टीवी यहाँ पर एक डकैत किए। बैंक Let me be इनको- clear here. One इनको- second, इनको- Ashok Yadav. इनका- Ashok Yadav, one कहाँ पे second. होगा? Let's और go दूसरी step by बात, step. मैं One किसी बीच में second. नहीं बोला था। आपको उनके कौन से ऐसे स्टेटमेंट से लगा कि वो जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बंसल जी ने क्या कहा भाई? सबरीमला में चोरी हुई, फला जगह चोरी हुई। तो जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो कहता मैं अकेले थोड़ी चोरी किया हूं, उसने भी चोरी किया उसको पकड़ो, उसने भी चोरी किया जो उसको पकड़ो। तो ये क्या है? ये एडवोकेसी नहीं तो क्या है? अजय आलोक जी कह रहे हैं ये हिंदुत्व के ऊपर खतरा है, हिंदुत्व को डिमीन किया जा रहा है। भैया, आपने गंगा भक्त बनने का नाटक किया, मां गंगा के नमामि गंगे परियोजना का धन लूटने का काम किया आपने। आप राम भक्त बने और राम का धन लूटने का काम किया। आप देश भक्त बने, देश को लूटने का काम किया आपने, देश को लूटा, अडानी को सींचा। तो आप जिसके भक्त बनते हो निशाना उसी के ऊपर लगाते हो। Okay. तो जनता, आप देखे होंगे हिना जी, तमाम ठगों के प्रकार, ठग जो है इंसानों को ठगते हैं, लेकिन ये ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जो अपने आराध्य देव तक को ठग लेता है। तो ऐसे ठगों से कैसे कोई बचेगा जो अपने आराध्य देव को ठग ले? एडवोकेट कपिल मदान इशू है। और इस तमाम जिस तरह की चीजें हो रही हैं, आप बस 10 सेकंड और हिना जी, 10 सेकंड हिना जी 10 सेकंड। देखिए, अभी आपने देखा होगा गोपाल राव जी को फ्लाइट में प्रोटेस्ट का सामना झेलना पड़ा, लेकिन वो फ्लाइट में प्रोटेस्ट का सामना झेलना पड़ा, जबकि वहां पर इस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं होता है। और अगर एक ग्राउंड पे जिस दिन आएंगे, चंदा चोरों का जमीन पे कितना विरोध होगा, एक कल्पना नहीं कर सकते। कितना विद्रोह होगा इनके खिलाफ, जो हिंदुत्व और सनातन का लबादा ओढ़े हैं, इनके मुंह से भगवान राम ने लबादा हटा दिया। ओके, एडवोकेट कपिल मदान, जनता से। एडवोकेट कपिल मदान। ओके, अशोक यादव जी, वी गॉट द पॉइंट यू आर मेकिंग। Yes, Hina. So, let me begin by saying, now there is a saying that says it's not the fall that is shameful, but it's the absence of shame in the fall. We all know that chori has happened. दान पेटी से पैसे गए इसकी चिंता नहीं है। सवाल कौन पूछ रहा है? अजय आलोक जी और जो बीजेपी के समर्थक हैं, इनको इसकी ज्यादा चिंता है कि सवाल कौन पूछ रहा है। भगवान राम के नाम पे वोट की राजनीति कौन करता है ये सबको पता है। किसी को कोई स्पेशल एविडेंस की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए। लेकिन अगर भगवान राम के नाम पे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है तो इनको प्रॉब्लम है। अगर कोई इनसे नीतियों पे सवाल पूछ ले तो बोल देते हैं एंटी नेशनल है। और अगर भगवान की दान पेटी में आस्था से खिलवाड़ हुआ और चोरी हुई हजारों डिवोटीज की फेथ की, जो उन्होंने एक पाई डोनेट करी मंदिर में, तो उनको ये एंटी हिंदूज बोल रहे हैं। ये कोई, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक इन वट एवर दे आर सेइंग। द फैक्ट रिमेन्स, you have appointed the key person in the trust. The fact remains, the people appointed by the trust were the thieves. They cannot be Hold on, Mr. Alok, please hold on. I never interrupted. Please hold on. चोरी नहीं होती है। So please hold on. चोरी नहीं होती है। Mind your Please language. hold on. One at a time, Please hold on. gentlemen. Let's have a Hold on. civil debate, Please please. hold on. Dr. Ajay Alok, I I'll give you understand. time Please to hold on. respond. Please hold on. Speak on your turn. Advocate Please Kapil speak on Madan, your turn. finish your point. Then I have to go to Tushar also. He's been waiting Please speak patiently. on your turn. Okay. इनको इसकी चिंता नहीं है कि दान पेटी से चोरी हुई। इनको सिर्फ इसी की चिंता है कि सवाल कौन पूछ रहा है। इनको ये आज भी जिन लोगों ने चोरी करी है उनको टीवी चैनल पे बैठ के कवर फायर दे रहे हैं। ये नहीं बोलते कि हां कि इनके बनाए हुए लोग, उनके अपॉइंट किए हुए लोग चोर निकले। और एक बार चोरी नहीं हुई। अगर जो मीडिया की रिपोर्ट अगर आप ठीक मान लो,
तो उसके हिसाब से बड़े सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे चोरियां हुई हैं। और एक बात और अजय आलोक जी कहते हैं कि जी इससे आस्था से तो कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए चंदे का जो चढ़ावा है वो तो बढ़ गया। तो यही तो आपको और एक्सपोज कर रहा है। अगर ये एक्सपोज नहीं हुआ होता तो ये चढ़ावा भी चोरी हो रहा होता। चढ़ावा भी चोरी हो रहा होता। Tushar Gupta now. Okay, I'll give you time, Dr. Ajay Alok and Vinod Bansal ji, to make your points. But Tushar, you heard both sides here. One side is saying that the opposition is trying to politicize. The other side is also hitting back and raising questions. But the opportunity to politicize to the opposition has been given by the people who were managing the trust, isn't it? देखिए, ट्रस्ट के लोगों ने तो भाजपा को भी लेक डाउन किया है, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था। उन्होंने देश के डिवोटीज को भी लेक डाउन किया है। बट एक चीज, मैंने 5 लोगों की बात सुनी यहाँ पर, ऐसा लगता है कि ये पैनलिस्ट लोगों को बेवकूफ समझते हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर कह रही है हम खड़े हैं राम मंदिर के लिए। किसी ने अशोक यादव का नाम आज तक सुना था? किसी ने समाजवादी पार्टी को राम मंदिर की बात करते हुए आज तक सुना था? आज राम मंदिर में कंट्रोवर्सी होगी तो देखिए कैसे एकदम आगे आ गए हैं। अभी 2027 के यूपी इलेक्शनों के अशोक यादव जी बड़ी बातें करेंगे। अडानी को बीच में लाए। बताइए, 2013 में अखिलेश यादव की जो सोलर पॉलिसी आई थी उत्तर प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसमें अडानी को ही 50 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट मिला था। वो अशोक यादव नहीं बोलेंगे क्योंकि झूठ बोलना है। यहां किशोर तिवारी जी कह रहे मैं तो जेल गया था। जेल गए थे 2019 में, उस पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए जो पूछती थी राम है कहां, एफिडेविट निकालो, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ मांगो। ये इनकी श्रद्धा है। यहां पर कपिल मदान कह रहे हैं कि चोरी हुई है, सवाल पूछने वालों पे प्रश्न उठाया जा रहा है, राम के नाम पे राजनीति करते हैं। इनकी मानसिकता देखिए। आज भी इनको लगता है कि अगर भगवान राम का कोई नाम ले रहा है इस देश में तो वो राजनीति के लिए ले रहा है, श्रद्धा के लिए नहीं ले रहा, अपनी आस्था के लिए नहीं ले रहा। क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब तो ये सब कह रहे थे बीजेपी आरएसएस इवेंट है, तब तो ये कह रहे थे रिलीजन इज ए प्राइवेट मैटर। कपिल मदान जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहीं एक सीनियर लॉयर जो तब कांग्रेस के राज्यसभा एमपी थे, क्या कहा था उन्होंने 2017 में कि 2019 तक वर्डिक्ट टाल दीजिए, 2019 के इलेक्शंस तक वर्डिक्ट टाल दीजिए। ये तो इनकी मानसिकता है। पर आज भाजपा को भी एक टेस्ट में पास होना होगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया, अरेस्ट हुए, पर डिवोटीज जो हैं, जो वहां पर श्रद्धालु जाते हैं, उनकी मांग बहुत साफ है। सजा जिन्होंने चोरी करी उनको होनी चाहिए, जिनकी वजह से वो चोरी होती रही उनको सजा होनी चाहिए। और इस बात पे भाजपा की कभी मनाही नहीं रही है। कभी ऐसा नहीं कहा कि एसआईटी नहीं बनेगी, कभी ऐसा नहीं कहा जिन्होंने चोरी की उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, स्टिंग ऑपरेशन हर चैनल कर रहा है, टाइम्स नाउ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो 3 पैनलिस्ट यहाँ बैठ के ढोंगियों की तरह बात कर रहे हैं, लोग उसको भी देखेंगे। और अगर भाजपा अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं करेगी, लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विनोद बंसल जी, सवाल ये भी है, अगर वो पास्ट में राम विरोधी रहे हैं तो क्या उनको हक नहीं है चंदा चोरी पर सवाल खड़े करने का? नहीं है, सवाल खड़ा करना उनका काम है। लेकिन सिर्फ सवाल ही खड़ा करना चाहिए क्या? क्या जांच में सहयोग नहीं बनना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी, जिसको लोग ज्यादातर नमाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके अध्यक्ष ने जो पहला ट्वीट किया था सोशल मीडिया पे किया था। उसके बाद जितने स्टेटमेंट दिए सोशल मीडिया में दिए, मीडिया में दिए। अगर उनके पास कोई तथ्य था, कोई सत्य था, तो क्या एफआईआर दर्ज करना चाहिए था उनको? वो राम भक्त है ना। अगर राम भक्त हैं, राम जी का पैसा चोरी हुआ है, तो उनको सबसे पहले एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यह जनता में उनका ढोल मचाना चाहिए। उनको एसआईटी के पास जाना चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के जब तक गठन नहीं हो रहा तब तक एसआईटी क्यों नहीं गठित हो रही? जब एसआईटी गठन हो गया तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? एफआईआर हो गई तो फिर वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? जब गिरफ्तारी होगी तो वसूली क्यों नहीं हो रही? और उसके बाद लास्ट में जो आया तो कहना भाई एसआईटी का क्या फायदा, जिसकी रिपोर्टिंग उसको और रिपोर्टिंग उसको। आज तो सारे जो ट्रस्ट में भी संघ के लोग हैं और अपने गवर्नमेंट में भी संघ के लोग हैं, प्रधानमंत्री भी संघ का है। अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई मुझे बताइए, संघ का व्यक्ति कहाँ नहीं है? देश का प्रधानमंत्री संघी, देश का गृह मंत्री संघी, देश का रक्षा मंत्री संघी, देश का कैबिनेट संघी, देश के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट संघी, देश के अधिकांश जगह पर जो है ना संघ के स्वयंसेवक हैं। कहाँ से हटाओगे यार? कहाँ से भगाओगे तुम? ये मानसिकता है ना, ये इनका लक्ष्य 2027 है, नथिंग एल्स। और ये बात यह है कि देखिए, राम मंदिर में जो कुछ गड़बड़ हुई है
मैं कहता हूं उसको हम किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं, चाहे कितनी बचा लें। और एक और बात मैं लास्ट में कह दूं, यही आप देखना लास्ट में जाकर के मुझे जो विश्वास हो रहा है वो ये है कि ये जो टिन्नू यादव पुन्नू यादव है ना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं यादवों का कनेक्टेड लोग मिलेंगे जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। ये वास्तव में ये नमाजवादी हैं। विनोद बंसल जी, बिफोर आई गो अक्रॉस टू डॉक्टर अजय आलोक, आपने कहा कि ऑपोजिशन का हक है सवाल पूछने का, बिल्कुल चंदा चोरी पे सवाल पूछ सकते हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट आल्सो, तो वो कह रहे हैं कि एससी मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए। डू यू एग्री? कृपया इसको दान चोरी, देखिए चंदा ना बोलें, हिना जी चंदा ना बोलें कृपया। मेरे जो रिलीजन में हमारे चंदा कोई शब्द नहीं है हमारे। नहीं, आप मुझे ठीक है, आप मेरा ये सवाल का जवाब दीजिए। यू वांट ऑपोजिशन टू बी कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस इशू, तो ऑपोजिशन का कहना है कि एससी मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए। विल यू अग्री टू दैट? नहीं, मेरे एग्री होने से क्या होता है? दे शुड गो टू द कोर्ट। ओके, उनको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए, ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। डॉक्टर अजय आलोक, ओके विनोद बंसल जी, वी गॉट द पॉइंट यू आर मेकिंग। डॉक्टर अजय आलोक, आपने कहा कि राम में आस्था टूट नहीं सकती है, बट इट हैज डेफिनेटली इंपैक्टेड द फेथ ऑफ पीपल ऑन योर पार्टी। डू यू थिंक द बीजेपी विल हैव टू, ahead of 2027 polls, not just correct the narrative, but also will have to fix faith? See, people of this country, they are not naive. इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं. Don't consider them बेवकूफ. मैं आज कहता हूं कि मुझे तो अच्छा लगा कि राम मंदिर के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर की याद तो आई, लेकिन यही भी भारतीय जनता पार्टी थी जब वक्फ बोर्ड में हमने कहा था कि मस्जिदों में घोटाले हो रहे हैं अरबों अरबों रुपए के। इस हिंदू धर्म में मेरा फेथ है, मैंने राम मंदिर में दान दिया। मेरा इस्लाम में फेथ है, मैंने अपनी जमीन दान की अल्लाह के नाम पे। उस जमीन को करोड़ों लोग हड़प के बैठ गए। हमने, बीजेपी ने हंगामा उठाया कि वक्फ की जमीन को छुड़वाओ, सरकारी जमीन को छुड़वाओ। उसका क्यों नहीं आया ये बोलने के लिए ये लोग? क्यों? इस्लाम धर्म के फेथ में क्या उस वक्त चोट नहीं पहुंची थी जब वक्फ के करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जब मस्जिद की करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं? ये जामा मस्जिद हो, ये पटना का मस्जिद हो, उस वक्त ये कांग्रेसी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलते? ये नहीं बोल सकते हैं, ये हिंदू धर्म पे बोलते हैं। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। ब्रॉडर एजेंडा ये है, हिंदुइज्म को डिमीन करो, हिंदू धर्म को नीचे गिराओ, प्रभु श्री राम की महिमा को कम करो ताकि लोगों का विश्वास टूटे। इनका बड़ा एजेंडा ये है। इनको कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से। Okay, gentlemen, stay on with us. We have some big breaking news coming in at this point in time because a lot of developments are taking place in Ayodhya even as we speak. What we are getting to know is that Ayodhya police are likely to summon Ram Mandir trustees in the third week of July as the probe into alleged donation theft deepens. Investigators are focusing on identifying the alleged mastermind, tracing the money trail and recovering the proceeds of crime before questioning the trustees. Sources also tell Times Now that CCTV footage from the temple's counting area is being analyzed with preliminary findings indicating that monitoring staff were absent during a crucial period. The probe is also examining whether alleged theft was part of some kind of an organized racket. So this is the big breaking news that we are getting for you. Ashok Yadav, advocate Kapil Madan and Kishore Tiwari, to all of you this one question. I mean, now we have more details coming in. You were saying that perhaps bigger culprits are being shielded, no FIR against Champat Rai, Anil Mishra, etc. But now we have learned that all trustees are expected to be summoned in the third week of July. Let's start with you, Mr. Kishore Tiwari. I want to update the fact the Champat Rai is an innocent man. Those people are involved, they have a criminal background, and to cut Yogi to the side. And Ashok Yadav, I will add one thing. In this Chanda Chadawa or Chadawa Chori, nobody from RSS and Vishwa Hindu Parishad is involved. They are habitual criminals are involved, and habitual criminals are in BJP. So I think the investigation should be done. Okay. Like Dr. Ajay Alok people. Okay. They should be taken Advocate into Kapil custody Madan. and police remand should be taken. Advocate Kapil Madan. So, Hina, there cannot be a bigger farce than what we are witnessing today. How they are trying to hoodwink, how they are trying to manipulate, and how they are trying to make fool
of the millions of 10 crores of devotees. आप मुझे एक बात बताइए ना, I would want to say this Hindi. We are sitting in first week of July. Can you give me one plausible reason why would the investigative officer will choose 3 weeks date to summon someone? Are you not giving them an opportunity to manipulate? Are you not giving them an opportunity to cover up? Are you not giving them an opportunity to cook, a story, some sort of a defense, etc., which will manipulate, which will, completely mislead the investigation? There cannot be a bigger farce. In a theft case, let me tell you, and I'm saying this with utmost responsibility, in a theft case, you don't require so much time to investigate. And if you have information, if you really want to summon the trustees, it defies all logic, any plausible explanation that you will give them 3 weeks to even issue them summon. I can tell you that if they are serious about this investigation, they should complete the investigation in the time-bound manner. And the fact that what they are doing is that completely belies their true intention, that they want to hoodwink the entire country on this issue. Okay, Tushar Gupta, I want to give you the last word. I mean, in 2024, months after Ram Temple consecration, BJP slid to 240. Do you think Chanda Chori is going to hurt BJP in UP 2027? And also, is this case a bigger threat for UP CM Yogi Adityanath or BJP in New Delhi? Look, about the 240 number, a lot of things went wrong for the BJP. Many things they have reversed since then. But for the BJP, it's important that the culprits are punished. They cannot afford to linger on this investigation. People can see through the other parties, but they can also see through the BJP in case it delays the investigation, which is where it becomes a huge test for Chief Minister Yogi Adityanath, because his police department will take this on. If the ED and other agencies get involved, of course, it's a test for the BJP. But at the end of the day, it's about the devotees. If the BJP can take that message to the devotees that we are catching the culprits, we are taking the case to its logical conclusion, we are formulating a new framework where temple and the chadhavas will be audited, I think that's what people want. They want that confidence and they want the culprits to be punished. If the BJP can deliver on that, it won't be that big a test. But expect the Congress and the Samajwadi Party to go into 2027 polls as the opportunists they are, and to make an issue out of this. That the BJP should expect, and we should also. All right, we leave it there. Thank you very much, all of you gentlemen, for joining us in this debate. In fact, in the end, I will say the nation will wait for what the SIT probe reveals. A lot of politics may really follow that we're already seeing over the temple. But I'll like to wrap up tonight's debate with what Tulsidas ji said in Ramcharitmanas. Hoi hai soi jo Ram rachi rakha.